یہ ایک بار مجھے بس حاجی پورہ تھانہ میں ملک ندیم SHO تھا، وہاں کوئی سلسلہ بن گیا تو مجھے قبلہ حکیم صاحب نے بھیجا۔ تو میں جب وہ گیا نا تو اس کے آفس کے باہر ہی ایک سپاہی کھڑا تھا، تو وہ مجھے کہتا ہے مولوی جی موبائل دے دے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ تو اس نے کہا SHO صاحب نے منع کر رکھا ہے کہ کسی کا موبائل اندر نہیں آنے دینا۔ تو یہ ٹیپ مجھے SHO صاحب نے دی ہے، میں اس کا ٹکڑا کاٹ کے نا آپ کے موبائل کی بیک سائڈ پہ لگا دوں گا اور آپ کا نام لکھ دوں گا، تو یہاں سے آپ آ کر اپنا موبائل لے لیجئے گا۔ تو خیر میں نے اسے الجھنا مناسب نہیں سمجھا اور میں نے موبائل اسے دے دیا۔ تو اب اندر جتنے بھی گئے سارے موبائل کے بغیر گئے، اور جناب جب میں SHO صاحب کے کمرے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر بندے کا سانس رکا ہے، کہ لوگ سانس بھی ڈر ڈر کے، بڑا سخت SHO تھا ملک ندیم، کہ جناب کہیں سانس کی آواز بھی جو ہے نا وہ باہر نہ آ جائے۔ تو کیونکہ میرے پاس 2 موبائل تھے، ایک میں نے دے دیا تو دوسرے کا مجھے خیال نہیں رہا، وہ میں جیب میں ساتھ ہی لے گیا۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ اس کے آفس میں بیٹھے وہ میرا موبائل بج پڑا، تو جناب اس نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، لیکن کیونکہ نام تھا ساتھ قبلہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو پھر اس نے خیر کہا کچھ نہیں، تو لیکن اسے غصہ بڑھا ہے۔ تو کام تو جو میں کرنے گیا تھا خیر سو ہو گیا، لیکن پھر میں نے بڑی دیر سوچا یار SHO کیا ہوتا ہے، آج مر جائے کل اس کو پوچھے کوئی نہ، لیکن ذرا اس کے دربار کا روب اور دبدبہ تو دیکھو کہ یہاں موبائل بھی اندر لے کر آنے کی اجازت نہیں ہے، تو آواز تو نکالنا بڑی دور کی بات، لوگ سانس بھی بڑا سوچ سمجھ کے لے رہے تھے کہ کہتے سادی آواز بھی باہر نہ آ جاتے SHO صاحب ناراض ہو جاتے۔ لیکن قربان جاؤں حضرت، ایسے لاکھوں SHO آ جائیں اور ان کے دربار ہوں تو اس دربار کے آگے اس کا دربار کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے جب پڑھا نا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے، آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے، اس لیے حضرت اس گھر سے پیار کرو، اس گھر کی خدمت کرو، اس گھر کو سجاؤ، اس گھر کو سنوارو۔ جس کسی نے بھی اس گھر کی خدمت کی نا تو حضرت پھر وہ خالی نہیں رہا کبھی۔ یہاں حضرت دنیا کے 2 ٹکے کے جو چودھری ہیں ان کی کرو تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے حضرت، وہ یہ تو حضرت بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے، تو اس کی کرے گا تو اسے نہیں ملے گا حضرت، اسے اتنا ملے گا کہ نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت آج چودھریوں کے درباروں کا بھی تقدس قائم ہے، آج چودھریوں کی مجلسوں کی بھی رونقیں قائم ہیں، لیکن دکھ کی بات حضرت ہم نے پتہ نہیں اس گھر کو کیا سمجھ لیا۔ نہیں حضرت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ کا گھر، یہ ایسا گھر ہے حضرت اگر آپ آ کر خالی بیٹھ ہی جائیں نا، کچھ بھی نہ کریں، صرف آ کر آپ بیٹھ بھی جائیں گے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ ایسا سونا گھر ہے۔ اور حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سانو تے جو ملے ایتھوں ہی ملے ہے، سانو تے جو ملے ایتھوں ملے ہے۔ ابو بکر صدیق کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت عمر کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت عثمان غنی کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو جو ملا مسجد سے ملا، ہمارے بڑوں کو جو ملا حضرت مسجد سے ملا حضرت۔ اور آج جو ہمارے گھروں سے رحمتیں رونقیں بھاگ گئی ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہم نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے یہاں آؤ بھی اور اس کا ادب بھی کرو اور اس کا احترام بھی کرو، یہ بہت بڑی جگہ ہے۔ جیسے میں نے کہا نا حضرت ہم دنیا دار ہیں نا، ہم نے پیسے کو بہت کچھ سمجھ لیا، حالانکہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت، پیسہ سب کچھ اللہ کی ذات ہے حضرت۔ اگر وہ ہے تو پیسہ کام آئے گا، اگر وہ نہیں تو پیسہ کیا کرے گا یار، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ یہ مولانا روم علیہ الرحمہ مثنوی شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بابا جی تھے اور مال ان کے پاس بڑا تھا، اللہ نے بڑا مال دیا، وقت نزاع آ گیا، ان کو پتا تھا جو میرے بیٹے ہیں وہ نکمے ہیں، مال میں نے کمایا ہے، یہ عیاشی کریں گے اجاڑیں گے، جواب اللہ کے حضور مجھے دینا پڑے گا۔ علماء سے صوفیاء سے ان کی سنگت تھی، صحبت تھی، مشورہ کیا انہوں نے، کرتے کیا ہیں، انہوں نے 2 وصیتیں لکھی۔ پہلی وصیت لکھ کے نا شاپر میں ڈال کر اوپر لکھتے ہیں اس وصیت کو تب پڑھا جائے
जब सारे लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए इकट्ठे हो जाए। एक और वसीयत लिखी, उसे शॉपर में डाला, लफाफे को बंद किया और उसके ऊपर लिखा इस वसीयत को तब पढ़ा जाए जब मेरा जनाजा पढ़ दिया जाए। अब चौधरी था, मैं तो अक्सर अहबाब से पूछता हूँ, पता नहीं हजरत हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, शायद आपने पढ़ा हो तो हमें भी बताइएगा, कहाँ लिखा है कि अमीर के जनाजे में ज्यादा सवाब है, गरीब के नहीं होता। गरीब के जनाजे में आता ही कोई नहीं हजरत, पास से भी गुजरेगा अपनी दुकान पर बैठे रहेंगे, गरीब के जनाजे में कोई भी नहीं जाएगा हजरत। और अगर जनाजा हो किसी अमीर आदमी का, हमें इत्तला किसी भी रासला से मिल जाए, हम जरूर पहुंचेंगे हजरत। और ये मैंने अब देखा है हजरत, पहले जनाजे पे कौन मिला करता था किसी से, अब जनाब जनाजे पे भी लोग ऐसे मिलते हैं जैसे शादियों पर मिला जाया जाता था। और उसका मकसद क्या होता है, भाजी ध्यान रखियो, मैं भी आया जी, ते जे कल को मेरा मर गया तो तुसी भी आना जी। अजीब रंग लग गए, आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा लोग हजरत बड़े वहां खड़े होकर एक दूसरे को मिलते रहते हैं। लोग जनाजा पढ़ने के लिए आ गए, इमाम साहब भी खड़े हुए, आपने लोगों को नीयत बताई। तो जो बाबे का बड़ा बेटा था ना, वो कहता है मौलवी साहब अब्बा जी होरां ने 2 वसीयतां कीतियां ने। पहली वसीयत पर उन्होंने लिखा है इस वसीयत को तब खोल के पढ़ा जाए जब सारे लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आ जाएं। अब सारे लोग आ गए हैं, कितारें बन गई हैं, सफ़ें बन गई हैं, तो आप ये वसीयत पढ़ें। ये मौलाना रूम लिख रहे हैं, सन 700 हिजरी में मसनी शरीफ आपने तसनीफ की। उसमें लिखते हैं कि जब वो वसीयत को पढ़ा ना अलामा साहब ने, तो बाबा जी लिखते क्या हैं, जो लोग भी मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आ जाएं और आकर भी ना पढ़ें, मेरे सारे पैसे उनमें बांट दिए जाएं। अब जब ये ऐलान हुआ ना, तो थे तो हम जैसे ही सारे, उन्होंने कहा जनाजा फर्दे किफाया, चंद अहबाब भी पढ़ लेंगे, सबका हो गया, चलो अगर सवाब की बात है किसी और का पढ़ के ले लेंगे, यहाँ नगद पैसे मिल रहे हैं। एक निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, यहां तक कि मौलाना रूम लिख फरमाते हैं कि जितने लोग जनाजा पढ़ने के लिए आए थे ना, सब नेकी छोड़कर पैसे लेने के लिए पीछे जाकर खड़े हो गए। अब रह गए सिर्फ मौलवी साहब और बाबा जी के बेटे। बाबा जी के बेटों ने सोचा, ले भाई वो पैसे तो साडे ने, ए लै लोग चले ने, चलो हुण अब्बा जी ने वसीयत कर छड़ी, ये खैर उत्थे ते रिट नहीं हो सकती, लेकिन हुण कुछ असीं भी तो लईए ना। एक बेटा, दूजा बेटा, तीजा बेटा, चौथा बेटा, चारों जाकर लोगों में खड़े हो गए। अब रह गए मोए बाबा जी और मौलवी साहब। फिर मुझे यहाँ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब याद आए, आप क्या फरमाते हैं, जानदी वारी क्या डरोना बड़िया, डर दे हथ नहीं जाते, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे करने। रोना है जी हजरत, मैंने बड़ा बड़ा कुछ देख लिया है, इतना इतना कुछ देखा है कि दिल करता है सिर चिखे पा के कि टुर जाइए साइड, लेकिन क्या करें, ड्यूटियां लगी हैं, निभानी पड़ती। मैं नया नया गया ना जो बागडा कॉलोनी, अमीर आदमी, लैंड क्रूजर, प्राडो जनाब, सज्जे खब्बे, मेरी भी थोड़ी फिरकी घूम गई, बड़ी मोहब्बत मिली जनाब। अक्सर बड़े बड़े नाम जाते हुए वसीयत कर गए कि सानू गुसल जड़ा नाफा साहब देंगे आके। मैं भी नया नया था, मैंने भी चले जाना। एक बहुत बड़ा हजरत सियालकोट का नाम है, गुसल देने के लिए गया। इसी तरह सर्दियां थी, बाबा लेटा है चारपाई पे, उसका बेटा खड़ा था, तो बाबे ने ना स्वेटर पहन रखा था। स्वेटर भी को माड़ा स्वेटर नहीं हजरत, ब्रांड का स्वेटर, कई हजार उसकी कीमत होगी। तो मैंने बड़े बेटे को कहा, मैंने कहा गाल बात सुन भाई, जो तेरे हाथ में ये जो एप्पल का मोबाइल है ना, जिसकी कीमत इस वक्त में 1.5 लाख से ऊपर है, ये बाबे की कमाई का है। ये तूने हाथ पे राडो बांध रखी है ना, ये बाबे की कमाई की है। जो तेरे पास लैंड क्रूजर है ना, ये बाबे की कमाई की है। और ये वो बाबा है कि जिसको वली होने की तेरे लिहाज से सनद अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दी है। ये जैसा भी है तेरे लिए वली है। जिम्मेदारी मेरी है, जे तू कहें तो मैं बाबे का स्वेटर एनी तेन ला के दिना वा कि बाबे ने तकलीफ नहीं होएगी, तो स्वेटर तू रख ले, बाबे का स्वेटर है, ऐसे सदके तेरिया मौजा ने पाया कर। ये मस्जिद में बैठा हूँ, मुंडा कहता ना ना हजरत, मुर्दे दी शैवां नहीं पाई दी, मैं जालबत लोगों ने मुर्दा तेरा ते अब्बा यार की करन दे। उन्हें कहा नहीं मैं नहीं मुर्दे की शह पानी, जिन्हां लई तू पाप। ये मियाँ साहब ने एवं नहीं लिखे हजरत, आपने बड़ा मुशादा किया था जमाने का, जिन्हां लई तू पाप कमाई तेरे कर। खैर हजरत कैंची मेरे हाथ में थी, मैंने स्वेटर काट दिया। नीचे वो बाबे के कपड़े आए, और वो भी बाबे ने कैम्ब्रिज के, मुझे ब्रांड याद है आज भी, कैम्ब्रिज के बाबे ने कपड़े पहने हुए थे, हॉफ वाइट कलर की शलवार कमीज थी बाबे की।
मैंने दूसरे बेटे को कहा, उसी तरह मैंने कहा सारियां मुजाहिदियां ने, बाबे की शलवार है, कमीज है, मैं लाना हूँ, रख ले यार, कदी कदी तबरक समझ के पाई, ये मेरे वालिद नहीं। उसने भी यही कह के इनकार किया। फिर जब गुस्ल देने की बारी आई, मैंने कहा बताता मैं हूँ गुस्ल कैसे देते हैं। ऐ ओ अब्बा जिहदे मोढे ते बह के तुसीं टुरना सिक्खिया सी, ऐ ओ अब्बा जिहदी उंगली फड़ के तुसीं टुरना सिक्खिया सी, ऐ ओ अब्बा जिहड़ा कदी तुहानूं मरी खड़दा ही, कदी नरान खड़दा ही, कदी कागान खड़दा ही, कदी इंग्लैंड लैके गया, कदी सिडनी लैके गया। मैं दसना मैं गुस्ल दो। तीनों बेटों ने गुस्ल देने से इनकार कर दिया। कुछ भी नहीं हजरत, ये इसी तरह है, इसी तरह है। अगर इससे प्यार करोगे, वहां बेवफाई करोगे तो इसी तरह है, इसी तरह। सारे खड़े हो गए, रह गए मौलवी साहब और बाबा जी। सारे लोग पैसे लैन खड़ोते हैं, चार मलंग पे लंघन। फमन यामल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा। अल्लाह कहते हैं अगर किसी ने जर्रे बराबर भी खैर किया है ना, मैं ज़ाया नहीं करांगा, उन्हें बदला दूंगा। और क्योंकि वहां तो हजरत तोल होगा, फामा मन साकुलत मवाज़िनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया। जिन्हें नेकियां बढ़ गई, उसकी जिंदगी दिल पसंद होएगी। इसीलिए जो अल्लाह वाले हैं वो नेकियों की बड़ी कदर करते हैं, वो एक नेकी को भी ज़ाया नहीं होने देते। हो सकता है कल यही काम बना दे। और हम तो यहाँ हजरत ऐसे नेकियों को ज़ाया करते हैं कि अल अमान वल हफीज़। बाबे और ईसान तीन नाल मुरीद सन, वेख्या जनाजगा च लोग खलोते हैं, जाना ही है ना, कितने 5 मिनट लेट हो जाएंगे, फ्री दी नेकी है, आओ चलिए। आकर क्या देखते हैं, बाबा जी और कले मौलवी साहब, दुनिया जनाब खड़ी है उधर। वो बाबे मौलवी उन्होंने पूछने लगे, मौलवी जी हुक्म तो है वे कि दुखो जनाजे का मामला है तो छेती करो, जनाजा क्यों नहीं पढ़न दे। मौलवी साहब कहने लगे, हजरत बाबा जी जाते हुए वसीयत करके गए हैं कि जो लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए और आकर भी ना पढ़े, मेरे पैसे उनमें तकसीम कर दिए जाएं। ये सारे वो बदबख्त खड़े हैं कि जिनको नेकियों की जरूरत नहीं है, ये कहते हैं हमने पैसे लेने हैं। अब आप बताएं आपका क्या मामला, फूको पैसे हैं जो मेरे मुकद्दर में है। बाबा जी कह रहे हैं जो मेरे मुकद्दर में है कौन रोक सकता है। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी और मैंने बेतहाशा बार मुशादा किया इसका। आप फरमाते हैं, अंधेर गुबार बवर्ची खाना सह मना विच पकदा, बाज मुकदरू कख नहीं लभदा, देगी रवे तरकदा। मैंने बारहा मुशादा किया, हजरत 40 देगे पकाने वाला देगी, उसको एक बोटी नसीब नहीं हुई, रोटी कम पड़ गई हजरत। जिन्हें पकाइया उन्होंने बोटी भी नहीं लभी, जेड़े बाहरों आए ढिड भर के टुर गए हजरत। ये मियाँ साहब लिख रहे हैं, अंधेर गुबार बवर्ची खाना शरह मना विच पकदा, बाज मुकदरू कख नहीं लभदा, देगी रवे तरकदा। ये मुकद्दर है जिसका नाम लिखा है, ये हदीस पाक का। ये आप तो गांव वाले लोग हमसे ज्यादा इस बात को समझोगे। एक गंदम का खोशा होता है, उसमें कितने ज्यादा दाने लगते हैं। अब होता यह है कि जब गंदम को चक्की में डाला जाएगा उसका आटा निकलेगा। अब पता नहीं गंदम के एक दाने में आटे के कितने दाने हैं, वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो हदीस पाक का मफहूम है कि अगर गंदम के एक दाने में से निकलने वाला आटा 40 बंदों के पेट में जाएगा तो अल्लाह अपने कलमे कुदरत से दाने के ऊपर 40 बंदों का नाम लिखता है। और जिसका लिखा है हजरत वही खाएगा, दूसरा खा नहीं सकता कोई। उन्होंने कहा जो मुकद्दर में है वो मिल के रहेगा, सानू नहीं चाहिए पैसे। अगे हो मौलवी जी तुसी, असी तिने ਤੁਹਾਡੇ पिछे, चारे पिछे हैं, जनाजा पढ़ाओ। मौलवी साहब आगे खड़े हुए, चारा ने जनाजा पढ़िया, दुआ की तो चले। वो फिर आ गया बाबे का लड़का, आके कहता है जनाब बाबा जी ने 2 वसीयत लिखी हैं। पहली तो यह सी कि जेड़े जनाजा पढ़न आन ते आके ना पढ़न ते मेरे सारे पैसे उन्हां च वंडे जान। ऐ ते हुण असीं पैसे लैणे ने। उन्हां दूजी वेख लो, इहदे च की बाबे होरां ने लिखे है। वो बाबा जी होरी कहण लगे, मौलवी जी पढ़ो तुसी जनाजा पढ़ाया। तो मौलाना रूम लिखते हैं कि जब उसने मौलवी साहब ने वो वसीयत खोल के पढ़ी ना, तो उसमें लिखा क्या था कि मेरी पहली वसीयत मनसूख, जिसने मेरा जनाजा पढ़ा है मेरे सारे पैसे उनमें बंटे जाए। बाबा जी इत्थे भी इंज ही होना, इत्थे भी इंज ही होना। जे असीं अल्लाह और अल्लाह के रसूल नूं छड्ड के सिर्फ इस दुनिया नूं जप्पा मारिया ना, तो जांदे दुनिया ने साडे नाल इंज ही करना। मेरी चादर, मेरी वास्कट, मेरी गड्डी इत्थे रह जानी है। सानूं चौकने ने कफन पा कवरे धक्का देना है। ते जे हजरत ला लई ओहदे नाल ते फिर इत्थे भी मौजां ते कबरे भी मौजां ते अगे भी मौजां ही मौजां।